what's up? This is Vishali Tyagi and welcome back to my YouTube channel. I make travel content, and if you don't already follow me, then subscribe to my channel. Also, you can follow me on my Instagram. I'm linking my handle right here. So I am super excited because it's my birthday tomorrow and I am going on a trip. Finally I get to say this because मैं 5-6 महीने से कहीं घूमने नहीं गई हूँ and excited मैं actually इसीलिए हूँ because I've been planning a trip on my birthday for like forever, लेकिन वो कभी बन ही नहीं पाता for some reason. So I and my sister decided to take a 7-day long trip to Sikkim and Darjeeling, and I will show everything on YouTube, so stay tuned for that. So my flight is tomorrow from Delhi to Bagdogra, and tomorrow we'll go to Sikkim, but right now I am going to Delhi and I'm gonna go do some shopping and watch some movies, and I'm not gonna show you all that. So let's go directly to the airport and to Sikkim. So let's go. So we have finally reached the terminal 2 of Delhi airport, and मैं seriously बताऊँ ये किसी बस स्टैंड से कम नहीं था. बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं. सो अभी कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से बागडोगरा के लिए, विच इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू गैंगटॉक. वैसे एक और एयरपोर्ट है विच इज़ द पक्यंग एयरपोर्ट, बट बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट चलती नहीं है, तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैड. हेलो गाइस, हम सुबह के 5 बजे सड़ रहे हैं एयरपोर्ट पे. इट्स अ वेरी लवली एयरपोर्ट एंड हम रात से घूम रहे हैं बस. यहाँ पे मेरे जूते भी उतरवा दिए, पता नहीं जूतों के अंदर क्या मिल रहा था मुझको. So did you guys know that there's a Plaza Premium Lounge in every airport जहाँ पे आप मुफ्त खाना खा सकते हो. वेल मुफ्त नहीं, 2 से 10 रुपए कटते हैं, बट कैसे? Let me tell you. If you have a credit card of any good bank, you can just swipe it at the counter and they will give you an access to a premium lounge. मैंने यहाँ पर अपना कार्ड स्वाइप इसलिए नहीं करा because टर्मिनल 2 का जो लाउंज है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, and that's why I didn't do it. And please अपनी भी एक्सपेक्टेशन हाई मत करना, बट अगर आप टर्मिनल 3 वाले पे जाओ तो it is very great. You should definitely check that out, not the terminal 2 one. So we had an early morning flight to Bagdogra and we witnessed a very beautiful sunrise from our window. सो प्लेन पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग हुई. मुझे गो फर्स्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री बर्थडे केक दिया विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई डिडंट इवन नो कि ऐसे कुछ मिलता भी है. सो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला कि व्हेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट्स एट दैट टाइम आप अपना बर्थडे डाल दीजिए, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर बर्थडे देन एनी एयरलाइंस विल गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री बर्थडे केक. So finally reached the Bagdogra airport after 1.5 hours of flight and collected our luggage and straight away went to the taxi stand where our car was waiting for us. Hey everyone, so I have reached the Bagdogra airport and almost मैं 24 hours से awake हूँ because हम कल सुबह निकले थे अपने घर से and बिल्कुल नहीं सोए हैं, and finally it's like 9 AM and I'm in Bagdogra right now. और कल मैं 9 बजे उठी थी. So it's been a long day and I really don't want to vlog right now, but yeah, Go First gave me this birthday cake, so it kind of I think made my flight really well and I was happy with everything. So now we have booked a taxi for Gangtok and we are going there.
गैंगटॉक का रास्ता फ्रॉम द एयरपोर्ट इज़ लाइक एनी अदर माउंटेन वाला रास्ता एंड व्यूज़ आर क्वाइट सिमिलर बट इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. On the way we came across this dam called the Teesta River Dam, which is a great tourist spot, and you can take a halt here and take some great pictures. So after a long journey, we finally reached our resort. We are staying at Club Mahindra Leave in Tuna in Gangtok. It is one of the most beautiful properties there. So we're finally in Gangtok in our property. It took us around I think 4.5 to 5 hours to reach here, क्योंकि अभी ना ऑफ सीज़न टाइम है. अगर आप सीज़न टाइम में आते हो तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 hours लग सकते हैं, बिकॉज द एयरपोर्ट इज़ इन सिलीगुड़ी एंड वहाँ से हमें गैंगटॉक आना था. इट्स quite a journey. It's good mountain views and all that, but it can get a little tiring, so I would always suggest कि first day जो है गैंगटॉक में वो अपना फ्री रखो. आज का कोई शेड्यूल नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप. उसके बाद आई एम गोइंग टू गो टू हैव सम डिनर इन द रिजॉर्ट एंड दैट्स ऑल विल बी फॉर टुडे. वेल मैंने सोचा था कि MG रोड तो हो ही आते हैं, बट इन काले बादलों ने मेरे प्लान्स पे पानी फेर दिया. वेल लिटरली इट स्टार्टेड रेनिंग सो हेविली कि कहीं जाने को नहीं मिला. तो जब थोड़ी सी बारिश रुकी, इट वॉज डिनर टाइम ऑलरेडी एंड क्लब महिंद्रा का क्या लाविश बफे है. मज़ा आ गया इतना एक्सटेंसिव मेन्यू देख के. बफे डिनर के एंड ब्रेकफास्ट के मैंने ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़ पे किए हैं पर पर्सन, सो डेफिनेटली आई एट अ लॉट. क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टीज़ में खाना बहुत ही महंगा है. We have all the vegetarian foods, that is this jalebi and then pulao and then veg and soya sauce. There's chow mein, there's this. And these are all the non-veg items that are available that I don't eat. If anybody wants to eat, they can eat that. And there's some kind of breads. लास्ट में उनके बफे के केक को कट करके ही मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लिया एंड डे को यहीं पे एंड किया. दूसरे दिन की शुरुआत कुछ मॉर्निंग व्यू शॉट्स के साथ. Beautiful morning from Gangtok and
आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू बी हियर. इतनी ग्रीनरी एंड इतना सुबह, लाइक आई हैव वोकन अप टुडे एट 7 AM. कल इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था. इट वाज 24 आवर्स ऑफ नो स्लीप. आज मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी 7 बजे. 7 बजे से मैं बस थोड़ा कॉफ़ी व्यू वगैरह इंजॉय कर रही हूँ. एंड तब से मैं कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ विच वर क्वाइट अमेजिंग. यहाँ पे सन इज़ गुड, सो आई एम कीपिंग द फ़ोन हियर. सो आज टेक्निकली मेरा सेकेंड डे है गैंगटॉक में, बट आई एम काउंटिंग इट एज फर्स्ट बिकॉज कल तो कुछ किया ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो एंड गेट रेडी. तो पहले पेट पूजा एंड फिर काम दूजा वाली फिलॉसफी को माइंड में रख के मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए गई. इन द सेम रेस्टोरेंट वी हैड डिनर इन. इट्स कॉल्ड करीज. डिनर के जैसे ही मेन्यू वाज क्वाइट अमेजिंग एंड अगेन आई एट अ लॉट बिकॉज पैसे वसूल करना बहुत ज़रूरी है. Now let me show you the resort. So as you saw the entry of this property, which is very beautiful. This property is not that big but very pretty with all the aesthetics that it has, and small and cozy, and view is amazing, and the way that they have actually put all the things together, it's very pretty. It has a very big parking space, तो मैं वो दिखा देती हूँ. So as you enter, we have a very big parking space right there, and when you turn around, this is the property. This is the whole beautiful property which is like, it's extremely beautiful. and मेरे पीछे नदी है, by the way you can see, but नदी का जो एक्सेस है ना वो एक्चुअली रिजॉर्ट के अंदर से नहीं है, आपको रिजॉर्ट के बाहर से जाना पड़ता है. This is the restaurant where we just had our breakfast, and if we go over there, there's a sitting place right over there. There are more sitting place there. और वो जो दूर की आपको टेबल दिख रही है ना, that table, वहाँ पे bonfire लगता है रात को. And this area is where they have their pool. The pool is gorgeous, but you know we can't use that because एक तो शाम को तो ठंड होती है, so we can't use it anyway. So this is the whole area. यहाँ पर भी एक sitting spot है. बाकी this is the gorgeous pool area. Swimming तो यहाँ नहीं कर सकते because ना तो टाइम है. And this is the gaming zone जहाँ पे by the way सब games वगैरह है. This is 4 feet. We don't have many properties in Gangtok that has pool in it. There are not many properties, so this is one of those, and it looks good. I'm very tempted to use the pool,
but I don't have the time for it. अभी भागना है. So yeah, I'll also show you the club area जहाँ पर games वगैरह हैं खेलने के लिए. The club house. We have all games available: table tennis, football, chess, everything. Happy Hubs. आज क्या? आज Monday है. Monday. Nail art, cheese, yoga, and footage. And this is the whole zone. Hi. Hi, you guys are doing nail art? And she has done mine, so I am doing this. Can I see? You've done this? No, this she has. Okay. सो रिसेप्शन एरिया के बाहर इन्होंने ये पॉन्ड बनाया है, वेरी प्रिटी, एंड ये नीचे से ट्रांसपेरेंट है, सो यू कैन सी द फिशेस ऑल्सो. So we are now in Gangtok and we are going for the sightseeing now local. And बहुत लेट हो चुके हैं, 11:30 तो यहीं बज गए हैं. 2-4 करेंगे और फिर MG रोड जाएंगे. So we'll Hey, so let's start today's journey of exploring Gangtok. And सबसे पहली destination जहाँ हम जा रहे हैं वो है the Banjakri Waterfalls. It is my highest recommendation in Gangtok की मतलब अगर आप Gangtok आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. I think this was the best place that I went to and it is the highest on my recommendation list for you guys. ये generally added नहीं होती है packages के अंदर, but इस place को ज़रूर add कराइएगा. This place does not just have a waterfall, but आप morning में यहाँ lush greenery में nature walk भी कर सकते हैं to start your day on a happy and positive note. And this is the beautiful, beautiful waterfall. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same show. There are also some adventure activities to do here like zip line and rope walking. There are some statues of the tribes also that used to be here. Guys, we were at Banjakri Falls in Gangtok. कैसा एक्सपीरियंस था? मैं फोटोज के लिए उसे थे. It is a beautiful waterfall right there. इसकी 50 रुपए की एंट्री टिकट है एंड जो टैक्सी भी आप आते हो उसकी भी आपको 50 रुपए की टिकट कटवानी पड़ती है पार्किंग की. एंड बाकी सब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट्स टू मच ग्रीन एंड इट्स टू मच सुंदर. समथिंग आई लव हियर इज दैट डस्टबिन की जगह यहाँ पे ये नेचुरल यूज होते हैं. जूट बास्केट विच इज वेरी ग्रेट, वेरी इको फ्रेंडली एंड वेरी ग्रेट. आई लाइक इट. आओ रिया त्यागी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है. ऑल्सो यहाँ पे 2-3 सुंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं. एंड द रेस्टोरेंट्स वर क्वाइट एस्थेटिक, द व्यू वाज क्वाइट अमेजिंग एंड आई थिंक द फूड वाज आल्सो अमेजिंग.
So our second stop on the way is the Namgyal Institute of Tibetology. It's like a museum. 25 rupees की entry ticket है. It's quite normal. So let's check it out. Our second व्यू पॉइंट वॉज दिस. अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो वो हमने नहीं किया, बट द प्लेस वॉज अमेजिंग एंड काफ़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ की. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ तांत्रिक थिंग्स इन्वॉल्व विच वर वेरी लाइक आई वॉज वेरी क्यूरियस. देयर वर एक्चुअल ह्यूमन बोन्स जिनसे रिचुअल होते थे एंड दे हैव शोन ऑल ऑफ दैट. सो लाइक आई वुड से कि अंदर जाके 25 रुपीज़ की टिकट, आई थिंक यू शुड गो एंड चेक दैट आउट. इट वॉज अमेजिंग. अगला स्पॉट वॉकिंग डिस्टेंस पे है इंस्टीट्यूट से एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज दो ध्रुल चौटन विच इज़ अ स्तूपा एंड इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल. नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, आए हैं मोनेस्ट्री के अंदर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे. हम बाहर से ही आपको इसकी खूबसूरती दिखा देंगे. One thing I totally loved about Gangtok was how well the traffic management is here. Like 3 दिन में बहुत कम honking सुनी है मैंने यहाँ. And also कोई line cut नहीं करता. Everyone move in their own lane. Delhi जैसे areas में रह के you kind of start to respect these things. The next stop is Gangtok Ropeway. इसकी टिकट अराउंड 100 to 150 के बीच है एंड यू कैन गेट एन अमेजिंग एरियल व्यू ऑफ द होल सिटी ऑफ Gangtok फ्रॉम हियर. एंड आई एक्चुअली रिकमेंड इट इफ़ यू हैव द टाइम फॉर इट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दिस. Fifth place on our list is Flower Exhibition Center. It is at one end of the Ridge Park, which we didn't have the proper time to explore. This center has an amazing collection of various different flowers. If you are a flower lover, then this place is for you. Best time to visit is between March to June when the orchids are in full bloom. You can also buy some seeds from here as well. मुझे बेस्ट पार्ट इस जगह का इसके आउटडोर्स लगे हुए ब्यूटीफुल पिंक एंड रेड रोजेस के ट्रीज थे विद बेंचेस. इट मेड दिस प्लेस अ परफेक्ट फोटो स्पॉट.
next stop is Ganesh Talk. This is a Ganesh temple around 7 kilometers from Gangtok city at an altitude of 600 meters. We are at Ganesh Talk temple, जो कि यहाँ का one of the most beautiful temple है, not just because of the temple but also because of the view, because यहाँ से पूरी गैंगटॉक city दिखती है. As you can see, it is very beautiful. क्योंकि सनसेट होने लगा था, वी रश टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वाज ताशी व्यू पॉइंट, जो कि गणेश टॉक से काफ़ी पास है. So we are at the last stop of our destination, that is Tashi Viewpoint, and right now क्या है कि यहाँ पे बहुत cloudy है, so हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, but there are mountains over there, बहुत सारे mountains हैं उधर, but दिख नहीं रहे हैं. गैंगटॉक वापस आते हुए आप क्विक फोटो स्टॉप ले सकते हो एट द भक्तंग वाटरफॉल्स, जो कि रास्ते में ही पड़ता है. As we returned to Gangtok, it started to rain a little and गजब की भूख लगी थी सुबह से भाग दौड़ करते हुए, so we went straight to MG Road. MG Road की वाइब काफ़ी अच्छी है and there are a lot of brands and shopping options here. यहाँ का मिनीसो एंड मोमोसो बहुत बढ़िया है, चेकआउट ज़रूर करना. फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रॉम कोरियन, चाइनीज, जापानीज टू नेपाली, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन एज वेल. आई चोज द लोकल कैफे फॉर डिनर एज मैंने एक गैंगटॉक के लोकल व्लॉग में काफ़ी तारीफ सुनी थी इस रेस्टोरेंट की. आई लव्ड कि इन्होंने हॉट ड्रिंकिंग वाटर ऑफर किया एज इट वॉज क्वाइट कोल्ड आउटसाइड. We tried the hot chocolate pizza and Tibetan style sandwiches. There was also a heart-to-heart question game you can play with your friends. Food and ambience दोनों ही बहुत बढ़िया थे and I totally recommend this place. This is their reception area, which is decorated quite well. रिसेप्शन के लेफ्ट से जो कॉरिडोर है, इसको एंटर करके लेफ्ट में करीज रेस्टोरेंट है एंड राइट में इज़ दिस बार, विच इज़ आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल.
So let me give you a room tour of this property. We are currently staying at a 1-bedroom apartment. So let me show you. So this is the hall, mini fridge, and then this is the master bedroom, which looks like this. So this is a king side bed जिस पे इन्होंने ये प्यारी सी लीफ डेकोरेशन भी करके दी है. एंड देन बेड साइड there are switchboards, there is lamp on the other side, and the menu and this pretty lamp. There is the balcony. Then this is the work desk if you want to work on your laptop or something. Then the entertainment unit, the TV and everything. This is the Almirah, and that is me, and that is the room tour. But there's also a bathroom which is right there, and I think the reason why I took this room is the bathroom. Let me show you that. Show you the washroom, and here is it. And there is a jacuzzi in my washroom, and that's why I booked this room, because I wanted the jacuzzi. I've never had a jacuzzi in my life. This is my first ever jacuzzi experience that I'm gonna have, and I'm very excited. And it's a very big jacuzzi. फोटो में लग रहा था बहुत छोटी सी होगी, but no, it's quite a big jacuzzi, and we're gonna use it in some while. And yes, this is the whole, the toilet and the mirror, and then this is the wash basin, and there's also a dryer here. Oh yes. We are at the Canggu Lake and it is so beautiful. मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं इंडिया के अंदर हूँ. मतलब अगर आपको कोई रीजन चाहिए ना गैंगटॉक आने का, इससे बड़ा रीजन नहीं हो सकता. Today we are going to Canggu Lake and बाबा मंदिर, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है. वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है. But we are supremely late. हमें निकलना था कम से कम 7:30-8 बजे, और अभी फिलहाल 8:40 हो चुके हैं. तो we are going to rush to our car. हमारी गाड़ी. So we started our journey from Gangtok to Canggu Lake at around 9 AM. It is like 36 kilometers away. लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, but हमें एक्स्ट्रा 45 मिनट्स लगेंगे बिकॉज हमारा जो होटल है वो सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर्स दूर है. तो it will take us some extra time to reach there. I'm looking for that vintage. So we are at the check post of Canggu Lake and Baba Mandir, and यहाँ पर हमारे 10 rupees per person कट हुए हैं to cross the check post. So it finally seemed impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. You're whisking me. The lights were dimmed as our eyes met, moves on me.
लेक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर तो मौसम तो ख़राब होना ही था। एंड जस्ट व्हेन वी वर अबाउट टू रीच द कंचनजंगा व्यू पॉइंट, वहाँ पर ऊपर बादल फट गया, पूरे एरिया में फॉग हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें वो व्यू देखने को नहीं मिला। आई एम शोइंग यू द एरिया जहाँ पे दिखता है, बट ऑफ कोर्स अभी विजिबल नहीं है। कहाँ होता है? उधर। आते हुए दिख जाएगा। कैसे लग रहा है रिया मैडम ठंड में? अभी तो इट्स ओके, आगे अभी तो कम ठंडी है, आगे पता चलेगा। अभी हमने ग्लव्स खरीदे हैं, बूट्स खरीदे हैं, 100 रुपये 250 रुपये में यहाँ पे मिल गए। एंड अभी हम जा रहे हैं छांगू लेक पे, जो कि यहाँ से अभी 20 किलोमीटर्स और है। तो हम अभी रास्ते में हैं, निकले थे हम 9 बजे और अभी खाना पीना खाने के बाद 12 बज गया। आई थिंक अभी आधे घंटे में और पहुँच जाएंगे हम लोग। Maggi and momos are kind of irreplaceable in Sikkim, and I love some Maggi in the mountains. So we bought gloves here for rupees 200। यहाँ पे 100 से 300 की रेंज के बीच के ग्लव्स थे। एंड बिकॉज आवर शूज़ वर एक्चुअली स्नो शूज़, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यू कैन रेंट देम इन 150 to 300 रुपीज़ के बीच में। Now let's start our journey forward, and यहाँ से जो आपको व्यूज़ दिखने वाले हैं ना, you are going to be in awe, trust me and watch this। सबसे पहले हम गए बाबा मंदिर इंस्टेड ऑफ चांगू लेक, क्योंकि बर्फबारी के कारण रोड ब्लॉक होने की आशंका थी। रास्ते में हमें ये फ्रोज़न हार्ट शेप लेक भी दिखी, बट हम रुक नहीं सकते थे तो वो ढंग से कैप्चर नहीं हो पाई। सो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेस बाबा मंदिर। ये मंदिर नाथुला पास के नियर बाय है, विच इज़ एन इंडो चाइना बॉर्डर। बाबा मंदिर की वाइब्स इतनी अच्छी हैं, आपको वीडियोस में भी फील होगा। अपने भारत का झंडा बर्फ़ के पहाड़ों में लहराता देख के बहुत ही बढ़िया फीलिंग आई। यहाँ पे टेम्पल, गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू हरभजन सिंह, हु वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। उनकी डेथ 1968 में हुई थी एंड उनकी कहानी बहुत ही फैसिनेटिंग है। सो इन 1968 ही वॉज पेट्रोलिंग एंड उनका पैर स्लिप हो गया, बिकॉज ऑफ इट ही डाइड। दे कुडंट फाइंड हिज बॉडी एंड कुछ दिन बाद वो अपने कोलीग के ड्रीम में आए और बताया उनकी बॉडी कहाँ है, एंड ऑल्सो आस्क्ड टू मेक अ समाधि इन हिज नेम। उनकी बॉडी एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे मिली, फिर उनकी एक समाधि बनाई गई।
ये मंदिर बाद में बना है ताकि टूरिस्ट को विजिट करने में आसानी हो। उनकी एक्चुअल समाधि वही मंदिर के पास कुछ 100 स्टेप्स चढ़ के उनके बंकर में बनी थी। So as you enter this temple, उनका एक मंदिर दिखेगा। देन उनका एक ऑफिस है एंड देन उनका एक लिविंग रूम है। इस रूम में उनकी बेडशीट्स, कपड़े एंड शूज़ भी हैं। उनके शूज़ में काफ़ी बार मड लगी मिलती है एंड उनकी बेडशीट्स भी क्रम्पल्ड मिलती हैं। आर्मी ऑफिसर्स ट्रूली बिलीव दैट हरभजन जी विल गाइड एंड प्रोटेक्ट देम। वो काफ़ी बार बहुत आर्मी ऑफिसर्स के ड्रीम में आए हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है। Also, the Chinese soldiers at the borders have reported a turbaned man doing rounds on his horse at night. Fascinating, right? बट बेस्ट पार्ट इस जगह की है यहाँ की वाइब्स। Everyone was dancing on patriotic songs and everyone were enjoying themselves. We did too. इस जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, but we had to reach the next spot, which is Canggu Lake. Also guys, I'm gonna pause here for a minute and tell you about Nathula Pass. Nathula Pass is the Indo-China border जो कि आप विजिट कर सकते हो। I'm going to give you some important information about Nathula Pass. नाथुला पास मंडे को क्लोज होता है, सो अकॉर्डिंगली अपना ट्रिप प्लान करें। सेकेंडली यहाँ के लिए परमिट चाहिए बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है, तो अपना परमिट 1 या 2 दिन पहले अपने ड्राइवर से लगवा दीजिए। यहाँ जाने का गाड़ी वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लगभग 3000 to 6000 डिपेंडिंग कि आप किस सीजन में आ रहे हैं। ऑल्सो यू हैव टू कैरी फ्यू थिंग्स। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप कैरी कीजिए एंड ऑल्सो 1 ID अदर देन योर आधार कार्ड। सो आप अपना DL या अपना पासपोर्ट या अपना वोटर्स ये कैरी कर सकते हैं। So let's go to the next destination, but उससे पहले I have to tell you one of the most important thing that happened here. So while we were coming back और हम लोग नाथुला पास के बहुत पास में थे, one phone was showing the time of 1:10 PM and the other phone was showing the time of 3:40. And I thought कि इतनी जल्दी शाम हो गई, like हमने इतना टाइम लगा दिया वहाँ पे। This happens around the border area because यहाँ पे हम इतना पास है चाइना से कि फोन वहाँ का टाइम जोन दिखाने लगता है। तो वापस आते हुए रास्ता कुछ ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा फॉग हो गई थी एंड कुछ भी नहीं दिख रहा था एंड इट वाज अ लिटिल स्कैरी। लेकिन हमारे ड्राइवर भैया बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर है, सो उन्होंने गाड़ी बहुत ही सही चलाई एंड इतना डर नहीं लगा उसके बाद। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ चांगू लेक। सबसे पहले गए थे बाबा मंदिर जो कि चंगू लेक से ना 18 किलोमीटर आगे है। वहाँ हम सबसे पहले इसलिए गए क्योंकि वहाँ कभी भी वेदर खराब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, और सही में हो भी गया एंड वहाँ ऊपर थोड़ी सी स्नोफॉल भी हमें मिली, सो इट वाज अमेजिंग। एंड भाई वहाँ का एक्सपीरियंस इतना मस्त है ना, लाइक पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बज रहे, एवरीबॉडी इज डांसिंग एंड इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था, वाइब भी डिफरेंट थी। ऑल्सो बिकॉज वो चाइना बॉर्डर के काफी पास है तो हमारे टाइमिंग्स में भी फर्क आ गया था।
एक फ़ोन में it was 3:30 and another phone में it was 1 PM and it was actually 1 PM. So वो टाइम चाइना के अकॉर्डिंग चल रहा था. तो यहाँ से एक और जगह है that is the नाथुला पास, बट हम लोग वहाँ पर नहीं गए विच इज़ द इंडो चाइना बॉर्डर, बट हम वहाँ नहीं गए. अभी हम लोग आ चुके हैं चांगो लेक पे विच इज़ राइट बिहाइंड इज ऑल. एट द चांगो लेक एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं इंडिया के अंदर हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्विट्जरलैंड में हूँ और ये कोई लेक है, बट सो ब्यूटीफुल लेक. मतलब अगर आपको कोई रीज़न चाहिए ना गैंगटॉक आने का, इससे बड़ा रीज़न नहीं हो सकता. लाइक इसके लिए तो मैं बिल्कुल कभी भी ट्रैवल करके आ जाऊँ यहाँ पे. इट वाज सो ब्यूटीफुल. हार्ट कैसे बनेगा? तेरे को आता है बनाना? ट्राई कर. ये देख हल्की हल्की शेप आई. पीछे मारती है, पीठ पे मारती है. हिम्मत है तो सामने से वार कर ले. मैंने मार दिया तो तू मर देगी. तू एंड दिस इज द केबल कार एरिया राइट देयर. वहाँ से केबल कार चलती है चांगो लेक के ऊपर एंड दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. गाइस यहाँ पे कैश लेकर जरूर आओ बिकॉज टिकट काउंटर पे वो सिर्फ कैश लेते हैं, अदरवाइज नहीं जा पाओगे. मैंने अभी अपने ड्राइवर भैया से लिए हैं बिकॉज मेरा पूरा कैश अभी खत्म हो गया था. सो कीप कैश. ये यहाँ से यहाँ तक जाती है. रोपवे से व्यू तो काफ़ी अच्छे हैं बट मेंटेनेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है.
Guys, this right here behind me, इधर तो पूरा clouds हो चुके हैं. This right here behind me is the viewpoint from the top of the. वैसे बहुत डेंजरस सा रोप है भाई, इतना हिल रहा था ना, बहुत डर लग रहा था इससे ऊपर आते हुए. और रिया क्लैप पे करती है बर्फ में. रिया कैसा लगा? फ्रीज हो गया. दुख दर्द देखो. ओह रिया, तेरे पीछे क्या व्यू आ रहा है? रिया व्यू इज अमेजिंग. So I want to pause here and give you a product recommendation जो कि मैंने भी इस टूर से पहले डिस्कवर किया. Are you a person who loves snow destination but वहाँ पहुँचते ही आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं? Then I've got a solution you all will thank me later for. Decathlon is a store where you can find sports good online and offline in India. उनकी वेबसाइट पर हैंड एंड लेग वार्मर्स अवेलेबल हैं which look like this. इसको आप शेक करो तो ये हीट हो जाते हैं एंड देन यू कैन पुट देम इन योर ग्लव्स और सॉक्स. इट कॉस्ट अबाउट 400 रुपीज फॉर 10 पीसेज एंड हमने ये पूरे ट्रिप पे बहुत यूज किए हैं. दे वर रियली इफेक्टिव, so try it out once. After using this, you would be able to handle ठंड much better. हम लोग वापस नीचे आ गए हैं एंड दिस प्लेस इज एच्ड टू माई हार्ट फॉर एवर. इट्स प्योर ब्यूटी. हैविंग सम धूप हेयर विद रिया त्यागी. धूप चाहिए, धूप. मेरी बॉडी ने फंक्शन करना बंद कर दिया भाई. ये तो कह रही है मेरा हार्ट रेट इतना बढ़ गया था कि मेरे को तो लग रहा था कुछ हो जाएगा आज तो. बट ऐसे इतना डेंजरस है नहीं. ये थोड़ी सी हमारी लड़की है ना, हमारी लड़की थोड़ी बीमार रहती है. सो वी रीच बैक गैंगटॉक एट अराउंड 6 PM एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो वी वेंट स्ट्रेट टू MG रोड. हम कल वाले रेस्टोरेंट में ही गए थे, लोकल कैफे, एंड दिस टाइम वी ट्राइड द स्पेगेटी. नेक्स्ट हम गए अग्रवाल शॉप पे विच इज़ वेरी फेमस इन द एरिया फॉर प्योर वेज फूड. वी ट्राइड द स्ट्रीट फूड हेयर लाइक गोलगप्पा, चाट एंड पाव भाजी, बट ऑनेस्टली सब कुछ ओके था, ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे. बाकी का टाइम हमने MG रोड घूमने में एंड शॉपिंग करने में स्पेंड किया एज इट वॉज आवर लास्ट डे इन द ब्यूटिफुल प्लेस गैंगटॉक. And I'm really gonna miss this place and I will definitely come back here soon because I love the vibe of this place and people are very good, food is very good, so I really recommend to visit Gangtok. If you're planning a trip in India, definitely include Gangtok in your bucket list and especially Canggu Lake. सो आज वी आर चेकिंग आउट ना. मुझे कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी है. दिस इज़ आवर लास्ट डे नाउ. वी चेकिंग आउट फ्रॉम क्लब महिंद्रा एंड वी आर गोइंग फॉर पेलिंग नाउ. और हम सुप्रीमली लेट है. इट्स 10:30 ऑलरेडी. ज़्यादा ही हो रहे हैं
तो देखो थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे पिन पॉइंट करनी है इज़ दैट कि मैं इस प्रॉपर्टी की अच्छी चीज़ बताती हूँ कि एक तो बहुत ही अच्छी सुंदर सी प्रॉपर्टी है ये। रूम्स आर वेरी क्लीन, वेरी बिग एंड जकूजी भी था विच वॉज वेरी नाइस एंड स्टाफ इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी गुड। बट इसके कुछ कॉन्स है जो कि ना इग्नोर नहीं करे जा सकते। दैट इज़ कि ये सिटी से बहुत दूर है। लाइक आपको 30 मिनट्स की ड्राइव करके MG रोड गैंगटॉक तक जाना पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग जो कि ज़्यादा फिजिबल नहीं है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, एक साइड का कम से कम 600 से 800 रुपया लगता है एंड विच इज़ टू मच आई थिंक। सो आई वुड रियली प्रेफर कि ये बहुत बड़ा कॉन है। प्लस क्या है कि एक तो इतना दूर हो गया, दूसरा इतने पैसे देने पड़ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो आई थिंक आई वुड रियली सजेस्ट कि आप यहाँ ना ही रुके। एंड जो अगर आप मेंबर है क्लब महिंद्रा के, तो जो गैंगटॉक सिटी वाला जो क्लब महिंद्रा है जो सिटी में है वो वाला चूज करिए। चाहे वो थोड़ा छोटा भी है बट वो ज्यादा एक्सेसिबल है, इससे बेटर एक्सेसिबिलिटी है। एंड आई थिंक दैट डज मैटर अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हो। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए आ रहे हो देन आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज वेरी नाइस फॉर यू। सो मैंने किसी भी क्लब महिंद्रा की वीडियो पे या किसी भी चैनल को ये बताते हुए नहीं देखा कि एक तो ये थोड़ा सिटी सेंटर से दूर भी है, बट सेकेंडली इसका रास्ता भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वहाँ लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को भी नहीं पता था एंड रास्ते में काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ भी है, रात को थोड़ा सुनसान भी फील होता है। बट गैंगटॉक क्योंकि एक बहुत ही सेफ़ सिटी है तो उस चीज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट ऑल्सो रास्ते में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं, सो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने जो बुक कराई थी ना वो इसलिए कराई थी बिकॉज हमें लगा कि इसके आसपास नदी है, नदी के एक्सेस के लिए हमने कराई थी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे ना नदी का अंदर से कोई एक्सेस नहीं है और आपको इनके साथ ना 1 आवर का एक ट्रैकिंग टूर पे जाना पड़ता है, तब जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है ना तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे एंड वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट हाँ, व्यू डेफिनेटली बहुत प्यारे हैं। तो एज आई टोल्ड यू, आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज़ विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट राइट नाउ। उसकी वजह से हमारा लाचुंग का परमिट लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गया। बट कोई नहीं, कुछ जगह नेक्स्ट टाइम के लिए भी रख लेनी चाहिए, क्यों, है ना। सो वी डिसाइडेड इन द मॉर्निंग टू विजिट पेलिंग इंस्टेड एंड हम निकल गए अराउंड 11 बजे, जो कि डेफिनेटली बहुत ही लेट है। 9 बजे निकल जाना चाहिए क्योंकि गैंगटॉक से पेलिंग का जो रास्ता है वो लगभग 4 से 4.5 घंटे का है। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं टेमी टी गार्डन। ये रास्ते में ही पड़ता है, अराउंड 40 किलोमीटर्स है गैंगटॉक से। तो हमें लगे अराउंड 2 आवर्स यहाँ पहुँचने में एंड जाते ही काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हम बहुत कम ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो आते ही टूट पड़े हम मैगी पे। आई एम राइट नाउ इन सिक्किम एंड हम लोग अभी चौथे दिन पे हैं। वी आर गोइंग टू पेलिंग। हम लोग एक्चुअली पहले जाने वाले थे लाचुंग, बट बिकॉज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, वो यहाँ पर आई हुई हैं और उनकी वजह से हमें परमिट नहीं मिल पाया। सो वी आर नाउ गोइंग टू पेलिंग एंड ऑन द वे वी फाउंड आउट अबाउट दिस टी एस्टेट विच इज़ दिस बिहाइंड मी, द टेमी टी एस्टेट। सो हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई एम हैविंग अ black leaves tea over here. Chitty. I like it. I like it. I like it.
इमरजेंसी लगा। ज़ॉम्बी आ रहे, ज़ॉम्बी। So we're at the Temichi estate and it's a very beautiful place. Like मेरे background में देखो यार, सुंदरता ही सुंदरता है। This is owned by सिक्किम गवर्नमेंट ओनली और मतलब आई थिंक कुछ 1970 या 80s के टाइम से है ये। यहाँ पर जो फेमस है ना वो ब्लैक टी वाली चाय पत्ती है, जो कि मैंने अभी वहाँ पे टेस्ट करी। टेस्ट इज गुड। लाइक मुझे बहुत कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा। इट वॉज क्वाइट सिमिलर टू द अदर teas that is here, but yeah, the views are big, beautiful. Also, this place is not much touristy, so that's a plus point too. रकून है ये, रकून। बेचारा वो देख लेगा ना गैलेक्सी वाला तो मार देगा। मेरे डस्टबिन लेके खड़ा कर रखा है। रकून क्या होता है? रकून क्या होता है? वही जो तू है गधे। इंसानी कीड़े। Okay, bye. See you at the next destination. Let's go. ये खुशी बस थोड़ी देर की थी क्योंकि आगे सड़कें कुछ ऐसी हैं। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज, पेलिंग का जो रास्ता है गैंगटॉक से वो कुछ ऐसा है और ऐसे ही रोड्स आगे आपको एंड तक मिलेंगे। सो अब काम की बात करते हैं। गैंगटॉक से पेलिंग जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। यू कैन ईदर गो फ्रॉम नामची और रावंगला। दोनों से डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप नामची वाला रूट फॉलो करते हैं देन यू कैन विजिट द चार धाम टेम्पल। यहाँ पर चारों धामों की रेप्लिकास बनाई गई हैं, यानी कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ टेम्पल, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु रामेश्वरम एंड गुजरात का द्वारकाधीश टेम्पल। चारों की रेप्लिका यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो इन्होंने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की भी रेप्लिका यहाँ पर बनाई हुई है। एंड दैट्स नॉट ऑल, देयर इज अ 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मिडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो इट्स अ मार्वेलस साइट टू विटनेस। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। सो इफ़ यू टेक द रावंगला रूट देन यू कैन विजिट द बिग बुद्धा पार्क, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। सो लेट्स गो। So we finally reached the Big Buddha Park and it just looks something out of a movie. Truly beautiful. यहाँ की टिकट इंडियन नेशनल्स के लिए 80 रुपीज़ है एंड स्टूडेंट्स के लिए और भी डिस्काउंट है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू फ्लाई ड्रोन हियर देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 2000 रुपीज़ फॉर दैट। We are at the Big Buddha Park in Rawangla. And also if you haven't already, please subscribe to the channel. बहुत ही सुंदर सा पार्क है। देखो पूरा सीट एरिया ऐसे बना हुआ है सुंदर सा। रिया त्यागी वीडियो में नहीं आना चाहती है, सॉरी मैं अकेले आई हूँ।
everyone from Big Buddha Park in Ravangla. It is very beautiful. का रिया एडजेक्टिव बताइए. हम बहुत beautiful बोलते हैं, but it's quite beautiful. Hello everyone, welcome to the Big Buddha Park in Ravangla, which is amazing. इतना सुंदर व्यू है and इतनी ऊंचाई पे like ठंड हो गई यहाँ पर आके and काफ़ी fog है. Almost स्टैचू के पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा. And about this park, अभी बना था recently on the birth anniversary of Buddha, and it is a 130 feet tall statue, and that's it. बाकी तो यहाँ पे बस दर्शन कीजिए, view enjoy कीजिए. That's it. It's an amazing view and an amazing park. It should be on your list to Sikkim. क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, सो मैंने अंदर से रिकॉर्ड नहीं किया. बट दिस प्लेस इज़ एज ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एज फ्रॉम आउटसाइड, सो डेफिनेटली अ मस्ट विजिट. ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर दिस पार्क फ्रॉम गोल्फ कार्ट एंड इसका प्राइस 300 रुपीज़ है. So it's time to say goodbye to this beautiful place and let's move on to reach Peling. यहाँ से Peling अभी आगे 2 घंटा और है and we have to reach there as soon as possible. So everyone, we have finally reached Peling. अराउंड 6 o'clock हम लोग पहुँचे और यहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है और बहुत ठंड है बाय द वे, बिकॉज वी आर इन अपर पेलिंग रीजन. तो यहाँ पे जनरली भी काफ़ी ठंड रहती है. तो अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया है. वी आर स्टेइंग एट समित नेवा रेजेंसी एंड समित इज़ अ वेरी गुड ब्रांड इन नॉर्थ ईस्ट. आप उनकी कोई भी प्रॉपर्टी चेकआउट कर सकते हो. दे आर वेरी रिलायबल एंड वेरी गुड. एंड ऑल्सो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बिकॉज लाचुंग का परमिट कैंसिल हो गया एंड उनका जो होटल हमने लाचुंग में बुक किया हुआ था दैट वाज नॉन रिफंडेबल, बट उन्होंने फिर इधर शिफ्ट कर दिया एट द सेम प्राइस एंड ऑल्सो दे अपग्रेडेड आवर रूम्स एज वेल. सो या, दैट्स दैट. So let me give you the room tour and the resort tour also. थोड़ा बहुत दिखा देते हैं. सो एवरीवन, लेट मी गिव यू द रूम टूर ऑफ द समित नेवा. हमने यहाँ पर एक्चुअली रूम तो नॉर्मल लिया था, बट यहाँ रूम ज़्यादा आज ऑक्यूपेंसी नहीं है तो हमें फैमिली रूम मिल गया. तो टुडे रिया एंड आई हैव सिंगल किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड फॉर अस. तो ये है रूम. लेट मी शो यू एट वाइडर एंगल. ये रहा, ये है हमारा रूम. ओके, सो these are our 2 beds. Then ये सामने है टीवी
Then there's the mirror. Hello everyone. And ये पानी एंड कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हैं. एंड यहाँ से ये विंडो है बट यहाँ का व्यू नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा बैक साइड का व्यू था, तो पीछे कुछ है नहीं. इट्स जस्ट जंगल, सो नथिंग टू शो देयर. वॉशरूम इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट एंड नॉर्मल. ये रहा वॉशरूम. वॉशरूम में वी हैव अ ड्रायर and there's the shower, the geyser, the toilet, and that is it. That's the room tour. मुझे लगता था कि जो हम हिमाचल में जी भी गए थे ना, वो सबसे डेंजरस सा रास्ता हमने कवर किया होगा. बट भाई पेलिंग का जो रास्ता है ना, वो इतना ख़राब, टूटा फूटा और वन वे वाला रास्ता ना, पतली पतली सड़कें हैं. बट हमारे ड्राइवर भैया बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने हमें पहुंचा दिया जैसे तैसे करके, और टाइमली पहुंचा दिया. अंधेरे होने से जस्ट थोड़ा सा इतना सा अंधेरा हुआ था और हम पहुंच गए. सो या नाउ हम नीचे की मार्केट जा रहे हैं ऐसी एक राउंड लगाने, तो थोड़े बहुत चिप्स विप्स खरीदने जा रहे हैं. सो बाय. दो हमारे पास बालकनी नहीं है, बट देयर इज़ अ कॉमन स्पेस हेयर वेर यू कैन सिट एंड रिलैक्स. ऑल्सो दिन में यहाँ से कंचनजंगा का बहुत अच्छा व्यू दिखता है. सो वी ट्राइड वाई वाई. रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई. दिस इज़ द लोकल वाई वाई नूडल्स, बट मुझे ठीक लगी. नॉट बैड, बट मैगी जैसा स्वाद किसी चीज़ में नहीं है. सॉरी. और अभी हम ट्राई करेंगे थुक्पा. विल ट्राई थुक्पा. देखने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं. टुडे वी आर चेकिंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग सम प्लेसेस इन पेलिंग, और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे दार्जिलिंग. आज तो भाई मैंने ग्लास वॉक पे आके ताला खुलवाया है 8:30 बजे सुबह सुबह. यहाँ ताला लगा हुआ था. भैया आधे घंटे लेट खोलने का डिस्काउंट है क्या कुछ? ग्लास ब्रिज है, जैसे रिंग से कनेक्टेड है. फॉग लगा हुआ है इसलिए वहां पर क्लीनिंग चल रही है ताकि कोई फिसल के गिर ना जाए ग्लास ब्रिज से. गिर गया तो गया.
Hello everyone, this is Vishali Tyagi and this is day 2 in Peling. So a friendly reminder, if you have not subscribed to the channel yet, please go ahead and subscribe to the channel. So I am right now at the first glass walk in Peling and right behind me is the statue of Buddha and the monastery. So आज का जो प्लान है वो पेलिंग घूमने का ही है. There are 3-4 sightseeing that we're gonna do. एंड द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से ना भाई मैं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस टाइम पे, क्योंकि एक तो हमें जाना था लाचुंग जो कि हो नहीं पाया. चलो कोई बात नहीं, हम आए पेलिंग कि हमें कंचनजंगा व्यू देखने को मिले या स्काई हम इस पे ग्लास वॉक पे घूमे. बट इतना फॉग है ना और कंटिन्यूसली कल से बारिश हो रही है कि हमें आई डोंट थिंक कि कंचनजंगा व्यू यहाँ से दिखने वाला है. इवन अभी भी ग्लास वॉक की जो है ना वो क्लीनिंग चल रही है तो अभी बंद है. वी आर फ्यू पीपल हेयर, फ्यू ऑफ द फर्स्ट. इट्स ऑलरेडी लाइक 8:30 AM. यहाँ पर है काफी लोग, 20-30 पीपल आर ऑलरेडी हियर वेटिंग फॉर इट टू गेट क्लीन. सो या सो लेट मी शो यू द मोनेस्ट्री एरिया फर्स्ट. जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था फॉग और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. एंड आई विल से दैट तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं कि हम माउंटेन व्यू नहीं एंजॉय कर पाए. बट आई थिंक द फॉग एंड द मिस्ट मेक द होल प्लेस एंड द वाइब लुक मोर मैजिकल एंड मोर ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू मी. एंड इस पॉइंट पे ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ टू ऑल माई फेलो ट्रैवलर कि काफ़ी चीज़ें वाइल यू ट्रैवल आर नॉट इन आवर हैंड्स. मतलब कुछ भी गलत जा सकता है. योर प्लानिंग कैन गो रॉन्ग एनी वेयर बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ एनी थिंग. आई ओनली हैव वन सजेशन दैट ऑलवेज ट्रैवल विद अ पॉजिटिव आउटलुक. कुछ भी गलत हो जाए उसमें कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ लो, क्योंकि अगर आप मूड ऑफ करके ट्रैवल करोगे तो उसका जो पूरा एजेंडा है ना वो ख़त्म हो जाता है. लाइक ट्रैवलिंग इज़ फॉर जॉय, इट्स फॉर फन, इट्स नॉट टू बी इन टेंशन ऑफ एनी काइंड. सो enjoy and be in that moment and be grateful कि आपको ये व्यू देखने को मिल रहा है which is incredible. Always have that kind of mindset and you'll always be happy while traveling. देयर इज द मोनेस्ट्री एंड हम लोग अभी हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर. और राइट बिहाइंड मी ना ये जो पूरा एरिया है यहाँ से कंचनजंगा व्यू दिखता है. बट क्योंकि अभी पूरा फॉग है इस टाइम तो नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं अभी एक रील बना रही होती. हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती. सो ग्लास ब्रिज पे शूज़ पहन के आना अलाउड नहीं है तो वो बाहर ही रखवा लेते हैं सो दैट कोई स्लिप ना हो जाए. इस ब्रिज की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा. इवन किड्स वर ऑल्सो देयर एंड दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स. ऑल्सो यहाँ पे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. सो आई विल सजेस्ट यू कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ. हम लोग 8:30 आ गए थे एंड उस टाइम बहुत कम लोग थे. धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई. ऑल्सो चेक आउट द व्यू. आई मीन कितना अमेजिंग व्यू है. एंड अगर फॉग ना होती तो और भी ब्यूटीफुल व्यू होता. बट एनीवेज हमने इस जगह को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया है. वी enjoyed the glass bridge thoroughly and also visited the beautiful monastery, and now it is the time to move on to our next destination. So let's go.
सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ राबडेंसे रूइंस एंड यहाँ पर एक बर्ड पार्क भी है विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन सम टाइम बिकॉज फर्स्ट इट्स लंच टाइम। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एस्थेटिक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम जाकर बैठ गए एंड वी हैड मोमोज एंड मैगी एज यूजुअल। एंड यहाँ पे जो ये क्लियर सूप था ना मोमोज के साथ, ये बहुत ही टेस्टी था सीरियसली। एंड यू कैन सी मी हाउ बुकड़ों की तरह आई एम ईटिंग एंड एंजॉइंग माई फूड। और ये रास्ता बर्ड पार्क का है। किधर पहले जाए, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। Now we're starting our journey to the Rabdense ruins. Enjoy the nature. हम लोग अभी बर्ड सेंचुरी के पास है। यहाँ पर एक रूइंस हैं जो यहाँ के पुराने किंग थे उनके, वहाँ तक हम लोग अभी चल के जा रहे हैं इस टेम्पल रन वाले रास्ते में। काफ़ी ग्रीन रास्ता है। सो अ लिटिल सजेशन, कल हम लोग टिमिटी चले गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट आज हम लोग ना कंचनजंगा फॉल्स और लेक पे नहीं जा पाए जो कि यहाँ पे साइट सीन है लोअर पेलिंग में, बिकॉज हमें आगे निकलना है दार्जिलिंग के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फुल डे पेलिंग साइट सीन करना है तो टिमिटी को छोड़ दो एंड सिर्फ रावंगला करके और फिर बाकी का पेलिंग कर लो। when the Nepali invasion happened in like 18th century के around, so उन्होंने इस palace को completely destroy कर दिया and now you can see the ruins and the remains that are here, जो कि I think मुझे बहुत ही beautiful जगह लगी to explore and बहुत खूबसूरत है। और रास्ता the natural walk that we had, it made me think कि जब लोग पहले के ज़माने में इस पैलेस की तरफ आते होंगे तो कितना खूबसूरत रास्ता होता होगा और वो कितना enjoy करते होंगे इस वे को। So the ruins are a marvelous sight. It's very historical and you can learn a lot about some of the history जो कि अब पढ़ाई भी नहीं जाती। The Northeast used to be so much powerful in their time. Nobody could invade them easily and now we do not know about our own history. So यहाँ पे उसके कुछ आपको कण मिलेंगे जिससे आप थोड़ी knowledge gain कर सकते हैं। Also the views are quite amazing when you enter. हर तरफ आपको peaks दिखाई देंगे। There will be mountain views and also दूर से एक monastery भी दिखती है। We had an amazing time here exploring, reading and it was a beautiful experience. This was the palace of worship.
यहाँ पे पूजा होती थी, पूजा। क्या हम यहाँ चप्पल पहन के जा सकते हैं? बट अभी तो ये रिमेन्स है, तो हम जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बर्ड पार्क। ये काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है। दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन December of 2017, so it's very newly built, and just let's go inside and watch some birds. Hello camera, we are at the bird park. We're gonna see a lot of birds and then we're gonna go to Darjeeling. Okay, bye. Joey की ducks. ये किसका केज है? Bye bye.
सो आज हम लोग हैं दार्जिलिंग में एंड दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट दार्जिलिंग, वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल एंड वेयर यू कैन स्टे. सो आई एम राइट नाउ स्टेइंग एट समिटल दार्जिलिंग नियर द मॉल रोड एंड इट्स क्वाइट अ गुड होटल. क्योंकि हमने ना बाकी जगह पे अच्छे बजट वाला होटल लिया था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बजट में रह के होटल लिया है, बट इट्स क्वाइट गुड. मैं आपको रिजॉर्ट और रूम टूर दे देती हूँ. सो ये इस होटल की एंट्रेंस है और ऐसा मैंने काफ़ी सारे होटल्स में देखा है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे जनरली ऐसे शॉपिंग सेंटर बना हुआ है दार्जिलिंग में, जहाँ पर कपड़ों की शॉप्स हैं या फूड कोर्ट्स बने हुए हैं. एंड होटल का जो रिसेप्शन है वो 3rd फ्लोर पे है. सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया. ऑल्सो यहाँ पर एक स्पा भी है. एंड नाउ लेट मी गिव यू द रूम टूर. दिस वॉज द ब्रेकफास्ट बफे. खाना टेस्टी है बट लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट अ गुड प्रॉपर्टी इन अ गुड बजट. एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड आवर टूर ऑफ दार्जिलिंग और सबसे पहले हम लोग आए हैं पीस पगोड़ा एंड जापानीज टेम्पल में. मेरे पीछे यहाँ पर पीस पगोड़ा है एंड राइट बिहाइंड मी इज द जापानीज टेम्पल. हमने यहाँ पे थोड़ी देर लगाई है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं HMI इन विच इज़ द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट. वहाँ पे जू भी है. सो वी गोइंग ओवर देयर नेक्स्ट. So we have reached our next destination, that is Himalayan Mountaineering Institute. यहाँ पर एक ज़ू भी है एंड द ज़ू इज़ क्वाइट बिग. यहाँ पे बहुत बड़ा मैप भी है एंड देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स. बच्चों के साथ ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. वी सॉ फ्यू एनिमल्स बट केज सैड एनिमल्स को देख के कोई मज़ा नहीं आता. सो जस्ट लेट्स मूव ऑन एंड गेट टू आवर मेन डेस्टिनेशन, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट. So the Himalayan Mountaineering Institute is one of the most prestigious institute in the world. This was founded in 1954 by Pandit Jawaharlal Nehru. यहाँ पे काफ़ी सारे advanced and basic mountaineering courses है which you can find on their website as well. And so we were at the Himalayan Mountaineering Institute. अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है but it's very informative. जाके देखना चाहिए who all the people from India climbed there और क्या equipment यूज होते. It's very informative. और जू भी देखा है अभी हमने. अब हम यहाँ से आगे जाएंगे शायद रॉक गार्डन. और मैं अपना गिम्बल भूल गई हूँ होटल में, तो पहले तो होटल भागेंगे वापस वो लेने के लिए.
सो वी आर डन विद HMI एंड द जू एंड नाउ सिटी की हसल बसल को छोड़ के वी आर मूविंग ऑन टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो दार्जिलिंग के आउटस्कर्ट्स पे यू कैन सी अ ब्यूटीफुल वैली व्यू। ऑल्सो यहाँ पे चाय के बहुत सारे बागान हैं विच इज़ एक्चुअली दार्जिलिंग फेमस फॉर, वहाँ पे भी जाएंगे हम, बट उससे पहले हम जाएंगे रॉक गार्डन। सो वी हैव रीच द रॉक गार्डन। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है जो पूरे गार्डन में से फ्लो करता है एंड ये गार्डन बहुत ही बड़ा है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी नाइस पिकनिक स्पॉट। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम लेके यहाँ पर आओ। बहुत मस्त व्यू है सारी जगह से। ऑल्सो यहाँ पे बहुत तरीके के फूल उगे हुए हैं, सो इट्स अ ग्रेट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी एज वेल। Hey everyone, so the third spot is the rock garden। ये जनरली ट्रैवल एजेंट्स जो है ना दार्जिलिंग के पैकेज में सिटी टूर में ऐड करके नहीं देते, बट इसको ऐड ज़रूर करना बिकॉज इट्स अ प्रिटी वाटरफॉल और साथ में गार्डन भी है जहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो डेफिनेटली एडेड टू योर लिस्ट। एंड इसके बाद अभी हम एक टी एस्टेट पे जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स ना यहाँ पर लीव किए हैं क्योंकि हम लोग जिस टाइम आए हैं ना तो यहाँ पे कंचनजंगा का व्यू नहीं आ रहा बिकॉज 3-4 दिन से बारिश हुई है तो व्यू है नहीं, तो हमने 2-3 स्पॉट्स लीव कर दिया। लाइक वी डिड नॉट डू द सनराइज टूर ऑफ कंचनजंगा एट टाइगर हिल, वो हमने छोड़ दिया विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो वो अगर आप हम आए हैं मार्च फर्स्ट वीक में तो अभी नहीं हो रहा है, अगर आप आते हैं तो वो डेफिनेटली करो। एंड दार्जिलिंग का जो रोप वे है आप वो भी कर सकते हो, वो हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि व्यू तो है ही नहीं, करके क्या फ़ायदा। तो जो ये रॉक गार्डन में जहाँ पर हम अभी हैं इसकी जो टिकट है वो 20 रुपीज़ ओनली है पर पर्सन। एंड हमारे पास थोड़ा कम टाइम है तो हम जल्दी जल्दी करें। आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा टाइम लेके आइए बिकॉज फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी स्पॉट है, काफ़ी अच्छा स्पॉट है एंड गार्डन्स भी हैं, सब कुछ है। सो या बाय द वे मेरा गिम्बल मिल गया, होटल में ही था। मैं होटल में भूल गई थी। यस, वापस गए लेने के लिए, बहुत लेट हो गए इस चक्कर में। सो वी आर हेयर। दो दार्जिलिंग में काफ़ी सारे टी एस्टेट है। वी चोज टू कम टू ऑरेंज वैली टी एस्टेट, ये रॉक गार्डन से काफ़ी पास में है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। टी एस्टेट काफ़ी बड़ा है तो आप इधर घूम भी सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो फैक्ट्री होती है, टी फैक्ट्री, वहाँ पर आप पूरा प्रोसेस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चाय बनती है एंड वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो।
एट अ टी एस्टेट इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा फेमस तो अपने टी एस्टेट्स के लिए ही है। तो यू कैन डू फोटोग्राफी हेयर, और आप यहाँ पे से चाय भी परचेज कर सकते हो। बट जो यहाँ मिलती है ना, वो मोटे लीफ वाली मिलती है, और वो ना हमारे घर में तो देखो किसी को पसंद आई नहीं थी। हमने तो छोटी वाली टी खरीदी है फ्रॉम द दार्जिलिंग मॉल रोड। सो दिस इज़ द होल व्यू। यहाँ वैसे हर जगह से कंचनजंगा दिखता है, बट क्योंकि हम लोग बारिश के सीज़न में आए हैं तो हमें कहीं से भी नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली हर जगह से दिखता है। आई विश यहाँ तक पहुँचना इतना ईजी होता है एक चुटकी बजा के, बट नेवरदलेस सबसे पहले हम पहुँचे हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन पे, जो कि सिटी सेंटर में ही है। सो अगर आपका होटल सिटी सेंटर में है, आप काफ़ी इजीली वॉक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल हूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन पे, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड मैं आपको भी लेके जाने वाली हूँ टॉय ट्रेन स्टीम इंजन राइड पे। सो लेट्स गो एंड हैव दिस जर्नी टुगेदर। सामान परचेज किया जा रहा है रास्ते के लिए। जो यहाँ पे टिकट काउंटर है वो भी क्लोज हो चुका है, एंड टिकट्स अगर आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज करते हो तो वो 1500 में मिल जाती है, एंड अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बुक करोगे तो इट विल एटलीस्ट कॉस्ट यू 1800 रुपीज़। तो सबसे पहले मैं आपको डीजल इंजन वाली टॉय ट्रेन दिखाती हूँ। ये अभी अभी यहाँ पर आई है, एंड एज यू कैन सी इसकी सीट्स भी अच्छी हैं, एंड ऊपर से भी आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ फास्टर देन द स्टीम इंजन वन, और इसका प्राइस भी कम है। स्टीम इंजन की टिकट होती है 1500 रुपये की, और इसकी टिकट होती है 1000 रुपये की। हेलो फ्रॉम द ट्रेन। हाँ रिया पूरा धूप आ रही है। So this is the Darjeeling Himalayan train which is the steam engine one, and क्योंकि ये कोल पर चलती है तो इसका जो एक पूरा चक्कर है वो काफ़ी लंबा होता है, लाइक फ्रॉम दार्जिलिंग ट्रेन स्टेशन टू घूम एंड बैक टू दार्जिलिंग इट विल टेक यू अराउंड 1.5 hours to 2 hours in between somewhere। एंड इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। सो इट वॉज यूज मेजरली बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन यूज। इट वॉज बिल्ट अराउंड 1880 एंड 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे परचेज कर लिया था। बिफोर दैट इट वॉज मैनेज्ड बाय द असम रेलवे।
सो अभी मेरी थोड़ी सी रेंटिंग भी सुन लो, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेलिंग यू ऑल द गुड थिंग्स बट ऑल्सो अबाउट द बैड थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा शोर है इस ट्रेन में, बहुत ज़्यादा शोर है, और अभी ना धक्के मार मार के चल रही है। कुछ लोग तो ट्रेन से उतर गए, वो डर गए, उतर गए। पर मैं कह रही थी कि हम लोगों ने ना हरियाणा रोडवेज़ में ट्रैवल किया है, ये ट्रेन हमारा क्या उखाड़ सकती है, कुछ नहीं, हम अपना पूरा करेंगे जर्नी को। बट ना यहाँ पे बहुत पुरानी सीट्स हैं और ना मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है, जिस हिसाब से कि भाई ये हेरिटेज साइट है, इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना, उस हिसाब की मेंटेनेंस नहीं है, 1% मेंटेनेंस नहीं है। सो द फर्स्ट स्टॉप इन दिस जर्नी इज़ बतासिया लूप। ये 3 किलोमीटर ही है सिटी सेंटर से, सो हम अराउंड 30 मिनट्स में पहुंच गए यहाँ। यहाँ ट्रेन पूरा एक सर्कल लेती है एंड गिव्स यू अ 360 डिग्री व्यू। ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी अमेजिंग माउंटेन व्यूज़ फ्रॉम हियर। यहाँ आके वेदर भी एकदम चेंज हो गया एंड ठंडी ठंड हो गई यहाँ पे। तो बतासिया लूप के सेंटर में एक ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है फॉर द गोरखा सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू घूम रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन मोस्टली जो है वो सिटी के अंदर से ही जाती है, तो इतने ज़्यादा माउंटेन व्यूज़ नहीं है यहाँ पे रास्ते में, मोस्टली सिटी व्यू ही आपको इसमें मिलेगा। एवरीवन, वेलकम टू द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ये 7400 फीट की हाइट पे बना हुआ है एंड दिस इज द घूम रेलवे स्टेशन। यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट्स हियर। यहाँ पे टी स्टॉल्स हैं 2-3 विद सेल स्नैक्स ऑल्सो।
यू कैन ऑल्सो विजिट द घूम म्यूजियम, छोटा म्यूजियम है ये, एंड यहाँ पे पुराने स्टीम इंजन ट्रेन के स्पेसिमेन रखे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट द हिस्ट्री एज वेल। सो गिविंग यू माई फाइनल थाट, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप डीजल इंजन लो तो आई वुड प्रेफर दैट बेटर, क्योंकि उसकी सीट्स भी बेटर थी, उसके प्राइस भी कम है और वो टाइम भी कम लेता है और कोयले वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि डीजल इंजन को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें रादर देन स्टीम इंजन। दो जो हेरिटेज थिंग है वो स्टीम इंजन ही है, आई एग्री, बट इट शुड बी वर्थ द मनी एज वेल। तो वर्थ द मनी जो मुझे लगा वो डीजल इंजन लगा, ना कि स्टीम इंजन। सो या दैट्स माई व्यू। कमेंट्स में बताओ व्हाट इज़ योर व्यू अकॉर्डिंग टू दिस। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नाउ आई वेंट टू द दार्जिलिंग मॉल रोड। मुझे दिन में जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत कम टाइम था घूमने के लिए, सो आई वेंट इन द इवनिंग। मॉल रोड काफ़ी बढ़िया है, जैसा सारे हिल स्टेशंस का होता है सिमिलर ही है। काफ़ी सारी शॉप्स है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड काफ़ी सारे सिटिंग एरियाज है वेयर यू कैन जस्ट चिल। सो डिड दैट फॉर अ वाइल। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो एक चीज़ लगी यहाँ पर वो ये थी कि यू कैन नॉट ड्राइव ऑन द चौरस्ता एरिया। सो कोई भी अगर बाइक है तो वो सिर्फ इसी एरिया से वॉक करके पास कर रहे हैं एंड देन दोबारा ड्राइव करके जा रहे हैं। सो या द रूल्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट हेयर एंड दैट इज़ गुड टू नो। ऑल्सो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत मार्केट स्पेस वगैरह एक्सप्लोर किया जो यहाँ के लोकल मार्केट्स हैं, बट वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम हो गया था तो इतना सामान मैं देख नहीं पाई, बट यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट। उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए चाय खरीदने। दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर इट्स चाय, राइट। सो हम लोग इस शॉप पे गए थे एंड आई बॉट 2-3 काइंड्स ऑफ चाय। वैसे ये ब्रांड जो है ये अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगा, इनकी चाय काफ़ी अच्छी है। नाउ आई एम गोना गिव यू सम ऑफ द फूड रिकमेंडेशन। आई ओनली वेंट टू 3 to 4 प्लेसेस ओवर हियर, बट जितनी भी जगह पे मैं गई मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सबसे पहला ऑन माई लिस्ट इज़ द नॉम नॉम कैफ़े। ये मेरे होटल के 2nd फ्लोर पे है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैफ़ेज़ इन दार्जिलिंग। बहुत ही अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग कैफ़े है ये एंड द लाइटिंग इज़ क्वाइट गुड हियर। ऑल्सो द फूड अमेजिंग। आई थिंक यहाँ का रामन मैं कभी भी भूलने वाली हूँ, इतना टेस्टी और बहुत ही यम्मी था। एंड आई ऑल्सो ट्राइड सुशी। सुशी आई थिंक यहाँ की अच्छी होगी बट मुझे पर्सनली सुशी नहीं अच्छी लगी। सो या बट आई थिंक द रेस्टोरेंट इज़ क्वाइट गुड एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो यहाँ पे यू कैन बाय सम पेस्ट्रीज ऑल्सो, सो इट्स अ नाइस कैफ़े। After that, the most famous cafe or bakery in Darjeeling is Glenary. Glenary is so famous. It's a tourist spot. It's a photo spot and also यहाँ पे शाम को काफ़ी live music वगैरह भी चलता है. So it's a fun place. इसके ground floor पे bakery है and यहाँ की bakery it's true to its name. जैसा बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया है. It's actually that good. Everything that you taste here is very fresh. It's very good. Veg food या तो ground floor पे मिलता है या first floor पे मिलता है. On the second फ्लोर दैट इज़ द रूफ एरिया, वहाँ पे आप ड्रिंक्स ले सकते हैं बट जो फूड ऑप्शंस हैं वो सारे सी फूड या नॉन वेज ऑप्शंस है टेरेस पे. सो डेफिनेटली रिकमेंडिंग इट. सो यहाँ की मार्केट पे मोस्टली जो है ना नॉन वेज चीज़ें ही आपको ज़्यादा मिलती हैं, बट इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन लाइक मी सो आई वुड रिकमेंड फॉर डिनर गो टू लजीज अफेयर. ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है एंड द फूड इज़ क्वाइट गुड हियर, सो रिकमेंडिंग दैट ऑल्सो. सो
सो आज हमारा लास्ट डे है एंड वी आर गोइंग बैक। दार्जिलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट अराउंड 2 आवर्स दूर है। सो हम सुबह सुबह निकल गए हैं एंड रास्ते में जो आप ये ट्रेन ट्रैक्स देख रहे हो ये टॉय ट्रेन के ही है। सो द टॉय ट्रेन ऑल्सो गो फ्रॉम NJP रेलवे स्टेशन एज वेल। तो वहाँ से भी आप इसको पूरे रूट को बुक कर सकते हो, बट ये काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। इट्स अराउंड 7 to 8 आवर्स। So I finally reached the airport. I think I had the best time on this vacation and I loved it all. I hope मैं अपना हर बर्थडे इसी तरीके से मना पाऊँ। So we are back at the Delhi airport and we are going back home, and thank you for watching all my Sikkim vlogs. If you like all the videos, please like, share, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye bye.